Okay, I will start the presentation on penalty. Whatever we have made the discussion on penalty that is useful to you, that will clear the concept of penalty and the different types of penalties, how to charge that we have seen. Today, again, I will revise some different penalties and in a situation in a situation, how we charge penalty or interest. The situation arise like either we have to charge penalty or interest. That we have to learn today. Before that, I will explain again some types of penalties, and it's as per the uh, question paper of examination. Question may be asked, what is penalty, and write the different penalties. See, uh, is it visible to you? This is the slide for presentation. Is it visible? Yes, sir. Okay. Sachin is there. Sachin Gadekar. Okay. The word penalty is not a specifically defined in GST, and so it takes the meaning from various judicial pronouncements and principles of jurisprudence. It is not mentioned, it is not defined in the GST Act. When the GST bill passed in the Parliament in the year 2017, there is there is not defined the penalty or the meaning of penalty, but penalty meaning you can find in the law. You can see in the business law, in the business act, you can find out that. A penalty is a punishment imposed. Simple. It's a punishment imposed यानी कि लादना by law for committing an offense. Offense यानी कि क्या? कोई गुनाह करना. Offense गुनाह करने. Or failing to do something that was the duty of party to do. Party यानी कि the person or the supplier or the dealer has to do that. Again, I will read it. A penalty is a punishment imposed by law for committing an offense or failing to do something that was the duty of a party to do. When penalty is imposed when you are committing offense, you are committing misappropriation, you are committing misstatement, you are doing frauds, you are making frauds, you are in the track of fraudulent. That time the penalty will be imposed. It's for the punishment. This is the simple meaning given by some given in the law. A penalty can be both corporal or pecuniary, civil or criminal. Yes, these are the some basic types of penalty. Corporal or pecuniary. Corporal, it means the person can be sent to jail or imprisonment. Imprisonment यानी कि सजा, उसको सजा होना. Both corporal jail and pecuniary monetary penalties are applicable under GST. Both penalty in terms of monetary, in terms of money, or in terms of corporal, in terms of jail.
there is the jail for 5 years. If you uh, made the corporal uh, think, you will be in the jail, and there is no bail. If you have done the fraud more than 5 crores, if you evaded the tax more than 5 crores, you will be sent to jail by the commissioner. So these are the different imprisonments, the difference in uh, corporal jails. We have to see in the next, in the coming slides. Pecuniary, it means the monetary, and corporal, it means the jail. So these are two basic types of penalty, and how the penalties will be charged, we have to see, and when penalty will arise, when on which event there is the penalty, on which thing happened in the business in respect of GST, in terms of GST, how the penalty will create and will charge on that, we have to see. Common offenses under GST and their penalties. And in what we say in the box, I have written exam purpose. This what exactly you have to write in the exam. These penalties you have to write in the exam. Don't be confused. Whatever I taught you in the last lecture, forget that. Forget that. That was not exam oriented, but this is exam oriented. That was for conceptual clarification. Conceptual clarification. जो मैंने लास्ट लेक्चर में टॉट किया ना आपको, दैट इज फॉर conceptual clarification. But when the question in the exam, what you have to treat that question. So these are the things you have to keep in mind while solving the question paper in the examination. Common offenses under GST and their penalties. These are the common offenses under GST and their penalties. And see type of offense. क्या गुनाह होते हैं, किस प्रकार की गुनाह होते हैं, और किस प्रकार की पेनल्टीज इम्पोज होती है. What amount of penalty to be imposed. Okay. See type of offense. समझ रहा है सभी को? Are you listening me? Yes. Mahesh? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Okay. Uh, I thought that there is no one to listen me. Sometimes the disturbance of net, जब भी नेट का डिस्टरबेंस होता है तो इधर दिखाई नहीं देता है कि मीटिंग में कितने जन हैं, कौन कौन है. तो हमारा स्लाइड प्रेजेंटेशन चालू रहता है, लेकिन आई कांट सी यू by when I am presenting to you, presenting the topic. पेनल्टी फॉर डिले इन फाइलिंग जीएसटीआर. देखिए पहला पेनल्टी ये होता है कि जब आप डिले करते हैं जीएसटीआर फाइलिंग के लिए. व्हेन यू डिले द फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर, हाउ मच पेनल्टी विल बी imposed? How much penalty will be imposed? What is the punishment for late filing of GSTR? Late fee is rupees 100 per day per act. Per day per act. It means per act. It means if there is CGST and SGST, rupees 100 and rupees 100. CGST के लिए भी 100 पे करना है and SGST के लिए भी 100 पे करना है per day. From the next day of GSTR return. जैसे कि GSTR रिटर्न का डेट था 18th of every month. After the 18, from 19 and 20, 21, you have to start the counting of the days. How many days are there?
and that days will be considered for the penalty. And there is one another option. Total will be rupees 200 per day, यानी कि 100 CGST plus 100 SGST. This is the total of rupees 200 per day. Maximum is rupees 5,000. There is no late fee on IGST. Maximum rupees 5,000. I said that 5,000 is the maximum limit. It's the maximum limit to pay the penalty. When when penalty for delay in filing GSTR. डिले कर रहे हैं आप GSTR रिटर्न फाइल करने के लिए, तो मैक्सिमम कितना पेनल्टी पे कर सकते हैं आप? 5,000, नॉट मोर देन 5,000, नॉट मोर देन 5,000, यानी कि 5,000 ही आप पे कर सकते हैं। या तो फिर 100 पर डे कैलकुलेट करके आप 200 पर डे कैलकुलेट करके आपको पे करना है। rupees 200 you can calculate per day, and that amount you have to pay, or either you have option of rupees 5,000, यानी कि 200 से ज़्यादा डेज आपके हो रहे हैं और आपने लेट रिटर्न फाइल किया, उसको 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 200 से कैलकुलेट किया तो अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, लाइक 7,000, 8,000, 6,000 हो रहा है, तो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कंसिडर करना है, तो 5,000 से ज़्यादा पे नहीं करना है। कीप इन माइंड, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, दिस इज द कंडीशन अडॉप्टेड बाय GST एक्ट, and you have to follow it. So it's 5,000. Okay. Penalty for not filing GSTR. Again, penalty for not filing GSTR. GST पहले देखा, GST का जो रिटर्न है, GST रिटर्न है, उसको आप लेट कर रहे हैं फाइल करने में। और दूसरा क्या है? पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग GSTR। दूसरा यह है कि आप GSTR नहीं फाइल कर रहे, GST रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। पहला ये था कि GST रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं, अभी तो रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे आप। सी, पेनल्टी 10% ऑफ टैक्स ड्यू आफ्टर the verification of your business. Tax authority or commissioner will see the verification, evaluation of the business records of accounts and books, and they will understand how much tax you have to pay. आपको कितना टैक्स पे करना है, आपने कितना टैक्स, यानी कि इस GSTR रिटर्न में फिक्स होता है, तो टैक्स के 10%, सपोज टैक्स के 10%, इफ टैक्स इज रुपीज 10 lakh, टैक्स इज रुपीज 10 lakh, चार्ज पेनल्टी 10% ऑन 10 lakh, दैट इज 1 lakh। तो 1 lakh आपको पेनल्टी पे करना है ऑफ टैक्स ड्यू। टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट किया GST कमिश्नर ने या तो GST अथॉरिटी आए, उन्होंने कैलकुलेट किया, आपने ये पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग GSTR, आपने GSTR रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आपने GSTR रिटर्न फाइल करना चाहिए था। आपका 10 लाख का टैक्स है, अब आपको 10 लाख भी पे करना पड़ेगा और उस पर पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा 10%। तो 10% पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे, वो आता है 1 लाख, टैक्स 10 लाख, पेनल्टी प्लस टैक्स इज इक्वल टू 11 लाख, ऐसे अमाउंट पे करना पड़ेगा। या तो फिर पेनल्टी ऑफ टैक्स ड्यू और रुपीज 10,000, विच एवर इज हाइयर। अब ये इसमें दोनों में से कौन सा हाइयर अमाउंट है, 10,000 या 1 लाख? यस, 1 lakh. 1 लाख, करेक्ट। तो 1 लाख ए हाइयर अमाउंट है। या तो फिर जो अमाउंट टैक्स पे कैलकुलेट हो रहा है, यदि वो 10,000 से कम है, तो फिर 10,000 कंसिडर करेंगे, विच एवर इज हाइयर, जो हाइयर है वो कंसिडर करेंगे। यानी कि 10,000 के नीचे पेनल्टी पे नहीं करना, उसको 10,000 तो पे करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। 10,000 के नीचे आया पेनल्टी, सपोज 7,000, 8,000, 9,000 आया,
तो भी उनको विच एवर इज हायर, कौन सा हायर रहेगा, 10,000 हायर रहेगा उसमें से, उनको 10,000 कंसिडर करना जरूरी रहेगा पेनल्टी पे करने के लिए। ये दो तरीके हैं। इस प्रकार से लेट फाइल किया तो 100 रुपीज पर डे एज पर द एक्ट, और आप फाइल ही नहीं कर रहे जीएसटीआर रिटर्न, तो उसके लिए 10% ऑफ टैक्स और रुपीज 10,000 विच एवर इज हायर। यस, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। ये समझ में आया? यस, ये समझ में आया? हेलो हेलो हेलो, ये समझ में आया क्या आपको, महेश? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो अमृता, यस सर। आवाज आ रही ना? यस सर। समझ रहा है कि ये? यस सर। ओके। पेनल्टी फॉर कमिटिंग अ फ्रॉड, पेनल्टी 100, यदि आपने फ्रॉड किया, अब रिटर्न का हो गया, अब आपने फ्रॉड किया तो उसकी, उस पे क्या पेनल्टी है? पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स ड्यू। देखो जितना टैक्स है उसके 100% पेनल्टी। 10 लाख का टैक्स है तो 10 लाख का पेनल्टी लगेगा उस पर। पेनल्टी फॉर कमिटिंग अ फ्रॉड, यानी कि आपने फ्रॉड किया है तो उसके अगेंस्ट पेनल्टी चार्ज किया जाएगा। तो कितना? 100% ऑफ टैक्स ड्यू। जितना आपको टैक्स पे करने का था उससे बराबर, यानी कि 100% आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अब टैक्स ड्यू और रुपीज 10,000 विच एवर इज हायर, यदि वो दो अमाउंट कैलकुलेट करके उसमें जो हायर अमाउंट है वो कंसिडर किया जाएगा। 10,000 हायर है तो 10,000 कंसिडर किए जाएंगे। या तो फिर पेनल्टी का जैसे कि वो 100% ऑफ टैक्स ड्यू, 50,000 आ गया, 20,000 आ गया तो 20,000 कंसिडर करेंगे, 10,000 को कंसिडर नहीं करेंगे। विच एवर इज हायर सब्जेक्ट ऑफ दिस कंडीशन। हाई वैल्यू फ्रॉड केसेस ऑल्सो हैव जेल टर्म। देखो यानी कि केस का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा। हाई वैल्यू फ्रॉड, फ्रॉड का वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गया है तो फिर जेल में जाना पड़ता है। जेल, commissioner will send you in the jail as per the amount or the value of the fraud to be considered for the jail. पेनल्टी फॉर हेल्पिंग अ पर्सन टू कमिट फ्रॉड, हमने देखा है कि यदि कोई पर्सन दूसरे पर्सन को फ्रॉड करने के लिए हेल्प कर रहा है, जैसे कि ट्रांसपोर्टर है, उसने खुद ही टैक्स नहीं पे किया है और फिर भी वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का सर्विस कैरी कर रहा है, he is he is doing he is rendering that services, so that will be penalty on that commitment, on that committing frauds। तो उस पर जो पेनल्टी वो चार्ज किया जाएगा वो है 25,000। पेनल्टी फॉर हेल्पिंग अ पर्सन टू कमिट फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड करने के लिए हेल्प कर रहे तो उस पर पेनल्टी पे किया जाता है। तो वो पेनल्टी का अमाउंट है 25,000। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हेल्प कर रहा है फ्रॉड करने के लिए तो उसको पेनल्टी पे करना है 25,000। Common offences under GST Act, under GST and their penalties. Penalty for opting for composition scheme even though he is not eligible। पेनल्टी जो है वो कंपोजिशन स्कीम लिया है और वो एलिजिबल नहीं है। सपोज आई हैव अ बिजनेस एंड आई एम नॉट एलिजिबल फॉर composition scheme। The turnover of my business is more than 1.5 crores, and I am saying that the turnover of my business
is up to rupees 1.5 crore. Is up to rupees 1.5 crore. So I am making mistake. I am not eligible for that. So what kind of penalty I have to pay? Should I pay? Demand and recovery provisions of sections 73 and 74 will apply. So these are the two sections which are used for demand and recovery. For demand 73 and for recovery 74. And if there is fraud case in the composition scheme, penalty 100% of tax due. आपने कंपोजिशन स्कीम लेके फ्रॉड किया है तो 100% जो आप टैक्स पे कर रहे हो उसके 100% आपको पेनल्टी पे करना है. सपोज टैक्स का अमाउंट 1 लाख है तो 1 लाख पेनल्टी, 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, यानी कि जितना टैक्स है उतना ही पेनल्टी पे करना कंपलसरी रहेगा. और टैक्स ड्यू और रुपीज 10 लाख 10,000 विच एवर इज हायर, या तो फिर 10,000, यानी कि 10,000 हायर है तो 10,000 कंसिडर किया जाएगा. पहले 100% ऑफ टैक्स ड्यू. कंपोजिशन जो डीलर होते हैं उनका टैक्स ज़्यादा नहीं होता है, उनका टैक्स एटलीस्ट 20,000 30,000 50,000 ये इस लिमिट तक होता है. तो पेनल्टी यानी कि उसका जो टैक्स है उसके टैक्स के 100% चार्ज किया जाएगा. यदि उसका टैक्स 20,000 है तो उस पर 20,000 पेनल्टी, तो 20,000 प्लस 20,000 40,000 इतना, यानी कि ये टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा इसको कंपोजिशन डीलर को, क्योंकि ये हाईएस्ट होता है. 10,000 में वो हाईएस्ट है 20,000, या तो फिर 10,000 के नीचे है तो 10,000 कंसिडर करेंगे. नो फ्रॉड केस, फ्रॉड केस नहीं है तो पेनल्टी 10% ऑफ टैक्स ड्यू. किसके लिए? कंपोजिशन डीलर के लिए 10% ऑफ टैक्स ड्यू कैलकुलेट करना है. टैक्स जितना है उसकी 10% कैलकुलेट करो, और जो 10,000 है 10,000 में और जो टैक्स जो ड्यू है उस पर जो 10% चार्ज किया आपने, ये दोनों में से जो फिगर ज़्यादा होगा उस पर यानी कि वो पेनल्टी कंसिडर किया जाएगा. सपोज टैक्स है जैसे कि 50,000 पे 10% चार्ज करो तो आता है 5,000. ये 5,000 हो गया है, राइट. या तो फिर रुपीज 10,000 विच एवर इज हायर, 5,000 हायर है या 10,000, तो फिर आपको कंसिडर करना है 10,000 पेनल्टी. 10,000 penalty will be accepted by the commissioner. Penalty for wrongfully charging GST rate, charging higher rate. Yes. अब wrongfully charging GST rate, जीएसटी रेट आप रॉन्गली चार्ज कर रहे हैं, या तो आप हायर रेट चार्ज कर रहे हैं जीएसटी का, यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. तो पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स ड्यू और रुपीज 10,000 विच एवर इज हायर, तो 100% है टैक्स ड्यू के. यानी कि जो भी आपने जितना भी आपको एग्जैक्टली टैक्स पे करना था उसके 100% क्या करना है, आपको पेनल्टी पे करना है. इन विच कंडीशन इफ यू आर डूइंग और यू आर चार्जिंग हायर रेट ऑफ जीएसटी, इट मीन्स यू आर डूइंग रॉन्ग, आप कुछ गलत कर रहे हैं आप, यानी कि जीएसटी के रेट स्पेसिफाइड किए हैं और वो स्पेसिफाइड किए उससे ज़्यादा आप जीएसटी के रेट्स नहीं लगा सकते. उससे ज़्यादा रेट को आप जीएसटी चार्ज करके मार्केट में उसको सेल नहीं कर सकते. तो फिर आपको क्या करना है, यानी कि जो जीएसटी के रेट स्पेसिफाइड है उसी रेट को आपको क्या करना है, जीएसटी चार्ज करना है. तो यदि आपने ऐसे किया, ज़्यादा जीएसटी लगाया, तो आपको जितना भी टैक्स पे करना है वो टैक्स के 100% आपको पेनल्टी पे करना कंपलसरी रहेगा. या तो फिर रुपीज 10,000 विच एवर इज हायर, दोनों में से जो हायर है वो कंसिडर किया जाएगा. इफ द एडिशनल जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट सबमिटेड विद द गवर्नमेंट, यदि आप एडिशनल जीएसटी भी आपने कलेक्ट किया है एंड दैट यू आर नॉट सबमिटिंग टू
the government, there will be penalty for that. Penalty for not issuing invoice. पेनल्टी आपने इनवॉइस को इशू नहीं किया है तो उस पे भी पेनल्टी चार्ज होती है। तो इनवॉइस जो होता है यानी कि टैक्स इनवॉइस, उस पे कितना टैक्स चार्ज है, कौन सी डेट को वो ट्रांजैक्शन हुआ है, कौन से आइटम सेल आउट किए हैं, वो जीएसटी जो टैक्स जीएसटी का रेट कितना है, जीएसटी कितना चार्ज किया है, गुड्स का वैल्यू कितना है, गुड्स का प्रकार कौन सा है, ये सब उसमें कंसिडर होता है। और इनवॉइस का डेट टाइम वो सब स्पेसिफाइड, नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द रिसीवर, ये सभी के नाम्स होते हैं। और ये आपको इसको ही आप छुपा रहे हैं, ये आप इशू नहीं कर रहे हैं, पेनल्टी फॉर नॉट इशूइंग इनवॉइसेस, तो उस पे आपको 100% ऑफ टैक्स ड्यू। तो ये छुपाने के कारण जितना भी आपको टैक्स पे करना था, जितना भी टैक्स का पेमेंट था उसके 100% आपको क्या करना है, पेनल्टी पे करना है। या तो फिर 10,000 विच एवर इज हायर, दोनों में से जो हायर रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। पेनल्टी फॉर नॉट रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी, आप लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, मैंने कहा था आपको, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं, तो यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन। If you are liable to pay the GST, if you are liable for GST registration under GST Act, you must get the registration certificate. तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको पेनल्टी पे करना है। तो पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स ड्यू और ₹10,000 विच एवर इज हायर। ये यानी कि सभी के लिए 100% ही किया है, यानी कि जो फ्रॉड ज़्यादा है या तो जिसका अमाउंट ज़्यादा है, जानबूझ के किया जा रहा है वो ऑफेंस, उसके लिए 100% पेनल्टी रखा है ऑफ टैक्स ड्यू। जितना भी टैक्स आपको ड्यू है, जितना भी टैक्स आपको पेबल है, उसकी 100% पेनल्टी पे करना जरूरी है। या तो फिर 10,000 विच एवर इज हायर। पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट इनवॉइसिंग, आप इनकरेक्ट कर रहे इनवॉइसिंग, यानी कि इनवॉइसिंग जो है वो यानी कि करेक्ट नहीं है, उसको इनकरेक्ट कर रहे हैं आप, तो फिर आपको पेनल्टी पे करना है ₹25,000। उसके लिए पेनल्टी कितना होता है, 25,000। यानी कि जो करेक्टेड है इनवॉइसेस, यानी कि देयर में बी सम अर्थमेटिकल मिस्टेक्स इन द इनवॉइसेस, there may be inaccuracy of arithmetical calculations। तो जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस है उसमें जो एक्यूरेसी नहीं है, इनकरेक्ट है, वो उस कारण आपको 25,000 का पेनल्टी लगता है। 25,000 का पेनल्टी पे करना जरूरी है। Okay, these are all about the penalties. Okay, and I think you understand the types of penalties, these things which are important and which you have to write in the examination question paper when such kind of questions arise in the exam, university exam, what is the penalty, what is the meaning of penalty, and write the types of penalties. Yeah, that time you will have to write the answer of that particular question according to what I teach you. ओके, नेक्स्ट। अब ये सिचुएशंस ऐसे होता है कि सिचुएशंस वेयर देयर इज नो पेनल्टी बट इंटरेस्ट में अप्लाई। ऐसा सिचुएशन है कि वहाँ पे पेनल्टी नहीं लगता है, इंटरेस्ट लगता है। तो ऐसा सिचुएशन कब अराइज होता है, व्हेन such type of situation may arise in the business, and either we have to either we have to pay penalty or interest। एक तो पेनल्टी पे करना है या तो इंटरेस्ट पे करना है। तो ये सिचुएशन यानी कि समटाइम्स इट मेक्स कंफ्यूजन, इट मेक्स व्हाट वी से डिफिकल्टी
to pay penalty or interest. तो ऐसा कौन सा ऑफेंस है? ये ऑफेंस के बारे में भी हो सकता है, ऑफेंस के बारे में होता है। तो पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट टाइप ऑफ जीएसटी, यानी कि इनकरेक्ट टाइप ऑफ जीएसटी, जीएसटी का जो टाइप है करेक्ट नहीं है। सपोज आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जैसे कि आईजीएसटी इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी। कभी कभी क्या होता है कि आईजीएसटी के अलावा सीजीएसटी, एसजीएसटी चार्ज किया जाता है। दिस इज द माइनर मिस्टेक। ऐसे होता है कभी कभी। कभी कभी एसजीएसटी, सीजीएसटी के अलावा आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, देयर इज अ चार्ज ऑफ आईजीएसटी and there is a mistake, that is the incorrect type of GST charged. So what action to be taken on that? No penalty. If such type of things happened in the business, there is no penalty. Pay the correct GST and get refund of the wrong type of GST paid earlier. Yes, आपने जो रॉन्ग टाइप का जीएसटी अर्लियर पेड किया है वो आप रिफंड कर सकते हो, और आपको करेक्ट जीएसटी पे करना है। आपको करेक्ट, जैसे कि आपने पहले आईजीएसटी पे किया है, ये इनकरेक्ट हो गया, तो आपको क्या पे करना है? सीजीएसटी, एसजीएसटी पे करना है। यू हैव टू पे सीजीएसटी और एंड एसजीएसटी। यू रॉन्गली पेड आईजीएसटी, देन देयर विल बी द एक्शन। क्या एक्शन है? वहां पे कोई पेनल्टी नहीं है। पे द करेक्ट जीएसटी। तो यू हैव टू पे द करेक्ट जीएसटी। आपको करेक्ट जीएसटी पे करना है। यदि आपने आईजीएसटी या तो सीजीएसटी, एसजीएसटी ज्यादा पे किया है तो आप उसको रिफंड भी कर सकते हो। आप उसको रिफंड कर सकते हो। सपोज आपने आईजीएसटी के अलावा सीजीएसटी, एसजीएसटी पेड किया था। आपने आईजीएसटी के अलावा कौन सा पेड किया? सीजीएसटी, एसजीएसटी पेड किया, और उस टाइम आपने ना ज्यादा अमाउंट पेड किया टैक्स का, यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी पे इतना टैक्स नहीं लगता है उतना आईजीएसटी पे लगता है। तो ज्यादा जो टैक्स पेड किया है वो आपको रिफंड किया जाएगा। वहां पे कोई पेनल्टी चार्ज नहीं किया जाएगा। पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर, यदि आपने जीएसटीआर रिटर्न इनकरेक्ट फाइल किए, जैसे कि इनवर्ड सप्लाई के लिए जीएसटीआर 1 है, आउटवर्ड सप्लाई के लिए जीएसटीआर 2 है, एनुअल रिटर्न के लिए जीएसटीआर 9 है, कंपोजिशन डीलर के लिए जीएसटीआर 4 है। ये ऐसे अलग अलग जीएसटीआर रिटर्न है। ये यदि आपको इनकरेक्ट जीएसटीआर रिटर्न में आप कुछ गफलत कर रहे हैं, यानी कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, गलत रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस पे देखो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये थोड़ा मिस्टेक, यानी कि ये मिस्टेक होता है, तो उस पर पेनल्टी नहीं है, नो पेनल्टी। जीएसटीआर रिटर्न होता है, यानी कि अलग अलग रिटर्न है, तो कभी कभी उसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि कोई अलग रिटर्न टैक्स पेयर फाइल करते हैं, उस पर पेनल्टी नहीं लगेगा। ध्यान में रखिए, उस पर इंटरेस्ट लगेगा यदि इनकरेक्ट फाइल कर रहे तो। जैसे कि मुझे इनवर्ट सप्लाई के लिए जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहिए था, तो मैंने कंपोजिशन का जो जीएसटी रिटर्न है 4 वो फाइल कर दिया, जीएसटीआर 4 फाइल कर दिया, तो दैट इज इनकरेक्ट। तो फिर उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% ऑन शॉर्टफॉल अमाउंट। जो भी अमाउंट है शॉर्टफॉल, यानी कि जो भी डिफरेंस आ रहा है टैक्स पेमेंट में उस कारण, तो उस पर आपको 18% इंटरेस्ट पे करना जरूरी है। पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ इनवॉइस। आप इनवॉइस का जो पेमेंट है उसमें डिले कर रहे हैं, यू आर मेकिंग payment but you are doing delay in that payment for the invoice. So you have to uh, what action will be taken by the GST? ITC, input tax credit, will be reversed if not paid within 6 months. यस, यदि आपने वो पेमेंट नहीं किया है तो उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो नहीं मिलेगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। तो उस पर भी कोई पेनल्टी नहीं है, नो पेनल्टी एज सच। तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं है यदि आप यानी कि इनवाइस का जो पेमेंट है उसमें डिले कर रहे हैं,
तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, यही आपको सजा है। तो उस पर पेनल्टी नहीं रहेगा, खाली इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट आप नहीं उठा सकते। यू विल नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट when you delay the payment of invoices. So there is no penalty, but you will not get the ITC, that is input tax credit. पेनल्टी फॉर wrongfully चार्जिंग जीएसटी रेट, आपने जीएसटी के जो रेट है wrongfully चार्ज किए हैं, यानी कि वट एवर जीएसटी रेट स्पेसिफाइड इन द जीएसटी एक्ट, that rate you have not consider or you would not be considered, और सपोज आपने जैसे कि चार्जिंग लोअर रेट, आपने चार्जिंग लो रेट लगाया है, तो उस पर पेनल्टी नहीं है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एट द रेट 18% एप्लीकेबल ऑन द शॉर्टफॉल। यदि आप हायर रेट चार्ज करते हो तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। हायर रेट के लिए पेनल्टी मैंने बताया था, पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट इनवाइसिंग, पेनल्टी ऑफ ₹25,000। If you consider high rate of GST, there is penalty of ₹25,000 that you have to pay must। पेनल्टी फॉर रॉन्गफुली चार्जिंग जीएसटी रेट, यहाँ पे रॉन्गफुली चार्जिंग यानी कि चार्जिंग लोअर रेट, वहाँ पे हायर रेट था, यहाँ पे लोअर रेट है, यानी कि जो रेट स्पेसिफाइड किए हैं वो रेट से आप कम रेट लगा रहे हैं, तो उस पर इंटरेस्ट एट द रेट 18% एप्लीकेबल ऑन शॉर्टफॉल, वट एवर द अमाउंट ऑफ द टैक्स you are doing as a shortfall, so that shortfall पे आपको 18% इंटरेस्ट लगेगा। तो ये आज का लेक्चर का ये था, टाइप ऑफ ऑफेंस एंड द एक्शंस टेकन अगेंस्ट दैट ऑफेंस। तो इस प्रकार के पेनल्टीज आपको बताए, पेनल्टीज क्या है आपको क्लियर किया, पहले पहले पेनल्टीज का डेफिनेशन मीनिंग बताया, उसमें उसके बाद पेनल्टीज के टाइप्स क्या है वो आपको क्लियर किए, और यहाँ पे वेयर यानी कि किस सिचुएशन में, इन विच सिचुएशन यू हैव टू पे द पेनल्टी और इंटरेस्ट, आइदर पेनल्टी और आइदर इंटरेस्ट। तो ऐसा सिचुएशन होता है कि वेयर देयर इज नो पेनल्टी, यहाँ पे हमने देखा कि नो पेनल्टी है, तो वहाँ पे खाली आपको इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर दैट। ओके, दिस इज इनफ फॉर टुडे। I will make the question in the classwork for your presence in the class. Okay, are you present? You have to submit your answer. Okay. Today is 9th January. Time is 11:15 a.m. Topic attendance. Okay. You have to submit your attendance, and after submission of the attendance, leave the meeting. Okay, we'll see the imprisonment or the jail, or we can say the uh, what the word I have to use for that. That is corporal penalty in the next lecture. What kind of jail will be there, and what on what amount, कौन सी अमाउंट पे, यानी कि कितना टैक्स का चोरी करने पे कितना कैसा जेल होता है। जैसे कि मोर देन 5 करोड़ के आगे है तो उसको जेल होता है, और उसमें कोई बेल नहीं होता है, देयर इज नो बेल। इफ यू हैव डन
the evaded of tax more than 5 crores, there will be jail and there is no bail. वहाँ पे कोई bail नहीं होगा. Okay, and this is all about today. The, what I have to teach in the next lecture that I told you. Okay, thank you so much for your presence in the class. Uh, we'll see you on Tuesday, not on Monday. We'll not have lecture on Monday. See you on Tuesday. Okay, leave the meeting. ओके सर. समझ रहा है सभी को? यस अमृता. Yes, Yes, sir. sir. ओके पल्लवी, उर्मिला, हिमा. Yes, sir. ओके गुड. डाउट्स है तो बोलो. If there is no doubt, leave the meeting. Okay. I will stop my presentation. Okay. Leave the meeting.